Good morning, class. Good morning, sir. Today we discuss the difference between interference diffraction, Fresnel diffraction, and Fraunhofer diffraction. This is a interaction class, not a lecture class. We are connecting with our students. We all YouTube. We are watching our video. I want to meet you, our best student in our class. Each and every student is very capable and he is more capable as my point of view, and you all are watch in our video. Thank you. Now one by one we will interact our students. So today here we discuss first interference diffraction, Fresnel diffraction, and Fraunhofer diffraction. This is the part of wave optics. Okay, wave optics already we discussed Fresnel, Fraunhofer diffraction, interference, and the phenomena of what Newton's ring experiment and Fresnel diffraction, wavefront. These are the very important topic. Base shaped film, okay, constructive, destructive, dark, bright, maximum, minimum. These are the basic topics. So here very small class today. Just we differentiate the difference between the interference and diffraction, then Fresnel diffraction and Fraunhofer diffraction. Yes. So first I call our student to explain first what is the first point of interference. First point ये क्या है कि दो Firstly you read. फर्स्ट पॉइंट ये क्या है कि कोवेलेंट सोर्स है उसमें फ्रंट से निकलता है. This phenomena is the result of interaction taking place between two separate wavefronts. Wavefronts originating from two coherent sources. Okay, क्या मतलब समझे इसका? इधर वीडियो आइए. दो कोवेलेंट सोर्स है उसमें फ्रंट से निकलता है दो वेव लेंथ के सेम फ्रीक्वेंसी और सेम एम्पलीट्यूड का. ठीक, उसको फिर क्या कराएंगे जी? सुपरपोज कराएंगे. सुपरपोज कराने से क्या होगा? सम पॉइंट इज क्या होता है? मैक्सिमम होगा और सम पॉइंट इज मिनिमम. तो मैक्सिमम पॉइंट पे कौन सा फ्रिंज बनेगा? ब्राइट की डार्क? ब्राइट बनेगा. ओके, और मिनिमम पे हमारा डार्क बनेगा. तो जहां ब्राइट बनेगा वो हमारा कौन सा इंटरफेरेंस है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. और जहां पर डार्क बनेगा वो हमारा डिस्ट्रक्टिव. ओके, नाउ सेकंड. यस, कम फास्ट. The second point is the region of minimum intensity are usually almost perfectly dark. We understand by our student. Yes, the region of minimum intensity are using almost perfectly dark. जो रीजन होता है मिनिमम इंटेंसिटी का इंटरफेरेंस में वो परफेक्टली डार्क होता है because dark fringes are the example of destructive interference and the intensity is zero. So the region of minimum intensity of interference are perfectly dark. Correct. Left. चल रहे हैं? बढ़िया. Very good. Next, number third. So, hello everyone, my name is Vinay. I am a first semester BTech student and Sai is my physics teacher. So, I'm going to just explain this point. We stand here and then explain. So, interference fringes may or may not be of the same breadth. It means the interference between the fringes. Like fringes are of two types, bright and dark, and it is made when diffraction and interfraction occurs. Interference occurs. So the width of the both dark one and the light one are not the same.
In this third point, we are discussed that. That's it. Thank you, thank you, thank you. Very good. Please clap. Right explanation. Good. And now come to number 4. Yes. Number 4. All maxima are same intensity. All the stand here. Then explain. All the maxima are the same intensity, means same interference pattern. All maxima are equal intensity. Right? Sir, maximum means highest amount. Highest amount. Okay, thank you. बहुत छोटा टॉपिक था, छोटा पॉइंट. All maxima are of the intensity, same intensity. We already declared in the initially we study or understand about the interference. Now come to the diffraction. This is the most important. Yes, come for this explanation. Yes. Diffraction. This phenomenon is the result of interaction of light between the secondary wavelet originating from different points of same wavelength. जो डिफ्रैक्शन जो है phenomenon है, इसमें एक वेव फ्रंट के दो अलग-अलग पॉइंट से सेकेंडरी वेवलेट निकलते हैं, ओरिजिनेट होते हैं. तो उन सेकेंडरी वेवलेट के बीच में जो लाइट का जो इंटरेक्शन होता है वही डिफ्रैक्शन है. Correct. Please clap. Very good. Okay, this phenomenon is the result of interaction of light between the secondary wavelengths originating from different point of same wave. Okay, correct? Yes. Next, please come. Next, number 2. Please come. Okay, next. Skip the next. I will explain second point. Number 3, please come. Okay. Second point, the reason of minimum intensity are not perfectly dark. देखिए, जब हमारा मिनिमम हो रहा था किसमें, इंटरफेरेंस में, मिनिमम इंटेंसिटी जब हो रहा था तो हमारा कैसा फ्रिंजेस बन रहा था, डार्क. बट in diffraction, the reason of minimum intensity are not perfectly dark, may some point are bright. Okay, yes, come to explain number 3. Diffraction rays are not same of the width, क्योंकि प्रकाश का विवर्तन जो है ना, प्रकाश का विवर्तन की चौड़ाई समान नहीं होती, क्योंकि ना वो सनसाइड विवर्तन पर निर्भर करता है. ठीक, बहुत छोटा चीज था, अच्छा समझाया इसमें. तो उसका जो विड्थ है क्या होगा, नॉट द सेम विड्थ. बट हम इंटरफेरेंस में क्या होता था, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. बट इसमें रिक्वायर्ड कंडीशन क्या है, डिफ्रैक्शन फ्रिंजेस आर नॉट द सेम विड्थ. ओके, लास्ट. यस, प्लीज कम. Okay, I will explain. Maxima are of varying intensity. Okay, जो मैक्सिमम होगा वहां पर हमारा क्या, वेरिंग इंटेंसिटी हमको देखने को मिलेगा. तो बहुत छोटा चीज था, तो डिफरेंस आप लोग देख चुके हैं ऑलरेडी, प्रीवियस में बताया गया चुका है और 1 by 1 हम इसको एक्सप्लेन किए है ना. हमारे बच्चों के द्वारा बताया गया है ना, कुछ ऊपर नीचे हुआ होगा, मैं उसके लिए क्षमा चाहूंगा. ठीक, चलिए अब we explain the most important parts, Fresnel diffraction and Fraunhofer diffraction. ठीक, yes, first point. Yes, first point. Okay, first point of Fresnel diffraction. देखो Fresnel diffraction क्या होता है. Fresnel diffraction, in Fresnel diffraction we take two prism and connect base to base, and one angle is 179 and other two is 0.5 and 0.5. These are the mechanism of Fresnel diffraction. Okay, the meaning of diffraction is क्या होता है, कहीं से सपोज मैं सोर्स इधर सोर्स रखा हूँ और इस टाइप से यदि मैं स्लिट रखा हूँ, तो इस स्लिट से क्या हो जाएगा, हमारा
जो लाइट है वो पास हो जाएगा, चाहे बेंडिंग के थ्रू हो, किसी भी थ्रू हो, है ना, उसी इंटेंसिटी के साथ। तो ये हमारा क्या हो जाता है, डिफ्रैक्शन। ठीक है, तो डिफ्रैक्शन फिनोमेना में हमारा फ्रेनेल होता है और फ्राउनहोफर होता है। तो फ्रेनेल में क्या हो रहा है, जो हमारा सोर्स होता है और ऑब्जर्वर, जैसे कि मैं आपको बता रहा था सोर्स और ऑब्जर्वर, जो लाइट लिए हैं वो दिस इज व्हाट सोर्स, एंड हम उसको ऑब्जर्व करेंगे कहां पर, स्क्रीन में। तो एक होता है हमारा सोर्स और एक होता है ऑब्जर्वर, उसको ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, तो जो सोर्स और स्क्रीन के बीच में है ना, तो डिस्टेंस होना चाहिए, द सोर्स एंड द स्क्रीन आर एट फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द डिफ्रैक्टिंग अपर्चर। ओके, तो यहां पर इसका डिस्टेंस कैसा होगा, फाइनाइट। यस, सेकंड फ्राउनहोफर। नाउ सेकंड पॉइंट ऑफ दिस फ्रेनेल डिफ्रैक्शन, यस कम विनीत, फ्राउनहोफर, इसको मैं एक्सप्लेन करूं। ठीक, देखिए अब इसमें क्या बोला था, वेव फ्रंट्स आर डाइवर्जेंट आइदर स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल, है ना। जैसे कि आप सोर्स लिए हो, एक फर्स्ट स्लिट बनाया है ना, ये जो हमारा क्या होता है, स्फेरिकल, है ना, और सिलेंड्रिकल शेप में बनते जाता है। ये सिंगल स्लिट का कॉन्सेप्ट है ना, सिंगल स्लिट के डबल स्लिट हमारा फ्राउनहोफर में देखने को मिलेगा। नंबर थर्ड, नो मिरर और लेंसेज आर यूज्ड फॉर ऑब्जर्वेशन। इसमें किसी भी प्रकार का हम मिरर और लेंस यूज नहीं करते हैं। नो मिरर और लेंसेज आर यूज्ड फॉर ऑब्जर्वेशन। ठीक, यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ, हम दो प्रिज्म लेंगे, फर्स्ट प्रिज्म एंड दिस इज सेकंड प्रिज्म, इसको बेस टू बेस कनेक्ट करेंगे। जानते हैं एक ट्रायंगल में बेस होता है, हाइपोटेन्यूस होता है, परपेंडिकुलर होता है, तो हम उसको कैसे कनेक्ट करेंगे, बेस टू बेस। बेस टू बेस कनेक्ट करने के बाद हम ये बोल रहे हैं कि वन एंगल इज 179 एंड अदर एंगल इज 0.5 and 0.5. We already know the sum of these three angle is 180. Now we add all these three values and we get how? Okay, 180. यहाँ से हम, ये हमारा सोर्स होगा, ठीक है, लाइट इंसिडेंट करेंगे, ठीक, लाइट इंसिडेंट करेंगे, इस टाइप से होगा। और आप लेंसेस और लेंस की प्रॉपर्टी आप अलग से पढ़ोगे इसमें। दिस इज व्हाट कॉन्वेक्स लेंस, ओके, एंड दिस इज व्हाट कॉन्केव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस showing the property of converging and concave lens showing the property of diverging. Because of यदि हम लाइट इंसिडेंट कर रहे हैं कॉन्वेक्स में, ठीक, ये पॉइंट पे क्या हो जाता है, कन्वर्ज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कन्वर्ज। इसको कन्वर्जेंट भी बोला जाता है, कन्वर्जिंग पॉइंट भी कहा जाता है। यदि हम इसका इमेज फॉर्मेशन देखें, है ना, इमेज फॉर्मेशन देखेंगे तो क्या होता है, कन्वर्जिंग। और यदि हम कॉन्केव में देखें, कॉन्केव में जैसे लाइट इंसिडेंट हुआ, ये क्या करेगा, फैलेगा। दिस इज व्हाट डाइवर्जिंग। क्या है, डाइवर्जिंग। लेंसेस का अलग अलग प्रॉपर्टी होता है। मिरर में जस्ट यही अपोजिट हो जाता है। मिरर में जैसे हम कॉन्वेक्स लेंस में कन्वर्जिंग बोल रहे हैं, तो मिरर में क्या हो जाएगा, डाइवर्जिंग। कौन से मिरर में, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में कौन सी प्रॉपर्टी हो जाएगा, डाइवर्जिंग। बट कॉन्केव मिरर की बात करूंगा तो कॉन्केव मिरर की जो प्रॉपर्टी हो जाएगा वो क्या है, कन्वर्जिंग। बातें सबको समझ आ रहे हैं, ठीक। तो ये थोड़ा बहुत फेनोमेना है। यदि हम, आप 12th क्लास में पढ़ के आए होंगे, 12th क्लास में जो हमारा सिंपल माइक्रोस्कोप है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, ठीक है, टेलीस्कोप है, ठीक है, सेलेस्टियल है, जो हमारा खगोल वाला देखते हैं, है ना, डिफरेंट टाइप्स टेलीस्कोप है। टेलीस्कोप में भी क्या होता है, लेंसेज का कॉम्बिनेशन होता है, बहुत सारे लेंसेज का कॉम्बिनेशन होता है। आपको रे डायग्राम पता होना चाहिए कि हम लेंस ले रहे हैं, इनफाइनाइट से कोई रेस इंसिडेंट हो रहा है पूरे लेंस में, तो लेंस से क्या हो जाता है, फोकस से गुजरेगा, फोकस पॉइंट से गुजरता है। यदि लेंस हमारा जो लाइट है वो इनफाइनाइट में है, तो इमेज फर्स्टली कहाँ बनेगा, फोकल पॉइंट पर। फोकस जहां पर बन रहा है, सपोज मान के चलो ये हमारा फोकस पॉइंट है और लाइट यदि इंफिनिटी से आ रहा है तो
इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पे, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाएगा ना, रेज यदि आ रहा है तो उसे कॉर्नर से होके उसके फोकस से गुजरेगा, फोकस से इंसिडेंट कराओगे तो इनफाइनाइट में जाएगा, ठीक है। तो बहुत सारे जो हमारा टेलीस्कोप का टाइप्स हैं, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं संयुक्त और खगोली, है ना, दूरदर्शी और परावर्तक, बहुत सारे हैं इसमें, ठीक है। और इसमें 12th क्लास में टोटल 6 मेरे ख्याल से टेलीस्कोप है, जो हमको कोई भी माइनर चीज को बिगर करके बिगर चीज को एक लास्ट में भी आता है कि जो दो कॉन्केव और 1 कॉन्वेक्स मिरर को लेके एक इमेज फॉर्म किया जाता है लेंस पे, है ना। यहाँ पर जगह मैं बता रहा हूँ, जैसे ये हमारा हो जाता है, ये कौन सा मिरर है बताइए, पॉलिश पीछे साइड है, तो कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर। यहाँ भी हम एक और कॉनकेव मिरर ले लिए, ठीक है। यहाँ पर हम लेंगे कॉन्वेक्स मिरर, गलत हो गया, ऐसे बनना चाहिए, ठीक है। तो हाँ ठीक है, पॉलिश हम लोग इधर करेंगे, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, डाइवर्सिटी। इसकी प्रॉपर्टी क्या है, कन्वर्जिंग। मिरर है ना, यदि हम इस पीछे ऐसे लगा रहे हैं तो पॉलिश एरिया है, सिल्वर ग्लास, सिल्वर का पॉलिश किया जाता है तब हमारा मिरर बनता है, प्लेन प्लेट रहता है ना, और सिल्वर का पॉलिश किया जाता है तो क्या बन जाता है, मिरर। तो जैसे लाइट इंसिडेंट होगा तो यहाँ होगा, फिर लाइट इंसिडेंट होगा यहाँ, फिर फोकस पे, ठीक है। और सम रेज आर ट्रांसमिटेड तो फोकस यहाँ पर बनता है। मैं आपका सेलेस्टियल टेलीस्कोप की बात कर रहा हूँ, है ना, जिसमें डिफरेंट कॉम्बिनेशन, मतलब लेंस और मिरर के कॉम्बिनेशन से इसको इमेज फाइंड आउट किया जाता है। और यहाँ पर से छोटा सा कॉन्वेक्स लेंस लिया जाता है, तो ये यहाँ पर हमको इसको मेजर किया जाता है, यहाँ पर ऑब्टेन किया जाता है, आँख से देखा जाता है, ठीक है। तो ऐसा है चीज। नेक्स्ट थोड़ा बताने आया था, ज़्यादा अंदर घुस गए थे, वापस आ रहा हूँ। और ऑब्जर्वेशन ऑफ फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन, सॉरी फ्रेनेल डिफ्रैक्शन, है ना। फ्रेनेल डिफ्रैक्शन के जब हम लोग ऑब्टेन करेंगे तो हमारा जोन प्लेट का यूज किया जाएगा। जोन प्लेट जो सोर्स का शैडो बनता है ना, शैडो एरिया, जैसे यहाँ पास जो एरिया बनता है ये शैडो वाला, ये हमारा जोन प्लेट्स कहलाता है, ठीक है, जोन प्लेट्स। लास्ट, द सेंटर ऑफ द डिफ्रैक्शन पैटर्न may be bright or dark depending upon the Fresnel's zones, ठीक है। लेकिन इंटरफेरेंस में क्या हो रहा था, यदि मैक्सिमम है तो एकदम कंफर्म है, कौन सा बनेगा, जल्दी बोलो, मैक्सिमम है तो कंस्ट्रक्टिव यानी डार्क बनेगा। जहां पर अधिक प्रकाश है वहां पर चमकदार सतह ही बनेगा भाई। मतलब क्या हो रहा है कि मैक्सिमम इंटेंसिटी पे हम इतना कंफर्म हो रहे हैं कि इंटरफेरेंस में कैसा बनेगा, ब्राइट, बट मिनिमम इंटेंसिटी जहां पर होगा वो डार्क बनेगा। ये कंफर्म कौन करता है, इंटरफेरेंस। बट हम फ्रेनेल डिफ्रैक्शन की बात करेंगे तो ये क्या बोल रहा है, मे बी ब्राइट और डार्क डिपेंडिंग अपॉन दी फ्रेनेल जोन। फ्रेनेल जोन के ऊपर वो डिपेंड करेगा कि सतह किस तरह से चमकीला दिखाना है, कि हमको छायादार भाग दिखाना है। कंटिन्यू करें नाउ, फिर से इंटरेक्शन करते हैं आप लोग से। तो आइए 1 बाय 1। नेक्स्ट, फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन। पहले तो फ्राउनहोफर क्या होता है ये बताओ, आइए चलिए। हेलो सर, माय नेम इज विनीत। इधर भाई, And I am here to explain Fraunhofer diffraction. So here basically the source in the screen are out from infinite distance from diffracting apertures. ये जो है वो infinite distance तक जाता है. And second point is the wavefronts are plane which is realized by using convex lens. It can be also determined as ये आइडेंटिटी शो करता है, ओके शो करता है। और बोलेंगे और कुछ बताएगा फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन के बारे में, ठीक है। थैंक यू, प्लीज स्टेप नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट चित्रशील।
कौन सा एक्सप्लेन करेगा? फ्राउनहोफर डिफ्लेक्शन हिंदी में इसको बोलते हैं कि फ्राउनहोफर विवर्तन थर्ड रिफ्लेक्टेड लाइट इज कलेक्टेड बाय अ लेंस एज इन अ टेलीस्कोप। जो विवर्तित प्रकाश होता है उसको वापस लाने के लिए दूरबीन की तरह एक लेंस का उपयोग किया जाता है। और दिस सिंगल डबल स्लाइड और प्लेन डिफ्लेक्शन रेटिंग आर यूज्ड। ये जो फ्राउनहोफर के लिए फ्राउनहोफर होता है उसके लिए सिंगल डबल स्लाइड और प्लेन डिफ्लेक्शन रेटिंग का उपयोग किया जाता है। The center diffraction pattern is always bright for all parallel to the axis of lens। जो विवर्तन होता है ठीक है, बढ़िया प्रयास है, गुड गुड। और कोई बताना चाहेगा फ्राउनहोफर डिफ्लेक्शन? और कुछ बोलना चाहेगा? हाँ ठीक है, बढ़िया प्रयास किए थे। और बताना है? चलिए, यहाँ पर मैंने एक बताया था, देखिए यहाँ पर जो हमारा सोर्स है, सोर्स एंड स्क्रीन, द सोर्स एंड स्क्रीन आर एट infinite distance from the diffracting aperture। डन। देखिए इसमें जो इमेज बनेगा हमारा है फाइनाइट लिमिट रहेगा, बट इसमें हमारा क्या रहेगा फ्राउनहोफर में इनफाइनाइट रहेगा। डन। इसका वेव फ्रंट देखिए, इस पर डिपेंड करेगा। द वेव फ्रंट्स आर प्लेन व्हिच इज रियलाइज्ड बाय द कॉन्वेक्स लेंस। जो मैं इसका प्रॉपर्टी बता चुका हूं कॉन्वेक्स लेंस का, ठीक है, कन्वर्जिंग होता है। ठीक। नेक्स्ट, diffracted light is collected by a lens as in the telescope। जो कैसे हो रहा है मैं बता चुका हूं। ठीक। नेक्स्ट, for this single double slit plane diffraction rating are used। ठीक है, सिंगल स्लिट प्रकाश का सिंगल निकलना, डबल स्लिट के लिए क्या करोगे, लाइट इधर से है, ये फर्स्ट और ये सेकंड, लाइट यहां से निकलेगा, लाइट यहां से निकलेगा, इस टाइप से। ठीक। डबल स्लिट। एक लाइन इसमें यूज हुआ है प्लेन डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। प्लेन डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग हमारे लैब में है। प्लेन डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में हम 1 इंच में 15,000 लाइंस देख सकते हैं। डिफरेंट ग्रेटिंग होता है, कोई जरूरी नहीं है कि 15 होता है, तो हमारे लैब में उसका बता रहा हूँ मैं। 1 इंच में, 1 इंच में सोचो, 1 इंच में कितने 1000 लाइन, 15,000 लाइन। उसको भी हम एक सेपरेट येलो कलर को भी देख सकते हैं, हमारे लैब में ये सुविधा है। ठीक है। जो हमारा स्पेक्ट्रोमीटर है ना, स्पेक्ट्रोमीटर में क्या होता है, V1 V2 वाला कॉन्सेप्ट बीच में प्रिज्म रखते हैं। प्रिज्म क्यों, जब जैसे ही उसमें व्हाइट लाइट इंसिडेंट कराते हैं तो कितने कलर में डिवाइड हो जाता है, 7 कलर। इसी प्रकार हम डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग को रखेंगे, व्हाइट लाइट इंसिडेंट कराएंगे, उसमें 1 इंच में 15,000 का लाइन हमको दिखाई देगा, और इसको किसी एक कलर को रिजॉल्व करके बड़ा करके उसके हम वेवलेंथ को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ये सुविधा है। तो ये हमारा डिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट, डिफ्रैक्शन कैसे होगा, उसको बिगर करके कैसे हम देख सकते हैं, ये हमारा है क्या, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का कॉन्सेप्ट और फ्राउनहोफर ग्रेटिंग का कॉन्सेप्ट। लास्ट पॉइंट, द सेंटर ऑफ डिफ्रैक्शन पैटर्न इज ऑलवेज ब्राइट। ठीक है, इसमें क्या होता है, ब्राइट होता है। लेकिन जब मैं इंटरफेरेंस में न्यूटन रिंग की बात कर रहा था, तो न्यूटन रिंग में हमें सेंटर वाले पार्ट जब रिंग बना था तो वहां पास क्या था, डार्क। क्या था, डार्क। लेकिन कोई जरूरी नहीं है ना तो एकदम डार्क नहीं बनेगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, हमेशा क्या बनेगा, ब्राइट फॉर ऑल पार्ट पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ लेंथ। जो हमको पैरेलल ही लेना है ना, एक्सिस है उसी के अकॉर्डिंग, और लेते भी तो ऐसे है ना। आप सिंपल प्रिंसिपल एक्सिस की बात करोगे, सपोज ये लेंस है, ये तो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। सपोज मान लीजिए तो यहाँ पर एक कोई इमेज लेनी है, यहाँ से लाइट आ रहा है, ये इमेज लेनी है, तो ये हमारा फोकल पॉइंट, और ये क्या हो जाएगा हमारा फोकल लेंथ, है ना भाई। लेंस से हम जहाँ पर इमेज बन रहे हैं, लेंस से इमेज का जो डिस्टेंस है वही तो फोकल लेंथ।
इमेज बन रहा है फोकल पॉइंट। ठीक है, तो थोड़ा लेंसेज के बारे में आपको थोड़ा और देखना है ना। बाकी लोग पीछे ओवरऑल समझ आया सबको? आ जाइए अब सब लोग सामने, सबके सब प्लीज कम आइए, आइए सब लोग। ये लास्ट करते हैं, क्विक फास्ट आइए यहाँ पर जल्दी, क्विक फास्ट। सब अच्छा दिख रहे हो? हासिल आ जाइए हीरो। ठीक, सब लोग आ रहे हो? आना, कैमरे पर दिलाना है। इधर अंदर आ जाओ, मैं आगे निकल रहा हूँ, आ जाओ आप पीछे, उधर मत चलो। सब लोग आ रहे हो? ब्लैक बोर्ड के अंदर और आओ ऐसा। हाँ ठीक, आ रहे हैं सब लोग? कैसा लगा क्लास? बहुत बढ़िया, मजा आया? ठीक है, क्लास सही में अच्छा होता है पक्का ना? और क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ते हैं आप लोग? EVS, PVG, कम्युनिकेशन, फिजिक्स, विनय BEE। ठीक है, मजा आया? चलिए, अच्छे स्टूडेंट हैं हमारे बीटेक फर्स्ट ईयर के हैं, प्लीज लास्ट टाइम क्लैप। थैंक यू क्लास। थैंक यू सर। ठीक।